Hello everybody, welcome back to our class of learning mathematical concept. So in our previous class we have started with the topic of practical problems on the set operations, and in our last class we have done some of the important results on the number of elements on the set. We have understood. Now we will continue, and today we will be dealing some more questions based on the practical problems. So here one question I have taken here. The question says that a survey shows that 63% of Americans like cheese, whereas 76% like apples. If X percent of the Americans like both cheese and apple, then find the value of X. Right? So here we can see that. Let us denote this. Analyze करेंगे here. Given information क्या क्या है. Let C denotes number of people. N of C denotes number of people liking cheese, and A number of A denotes N of A denotes number of people liking apples. Right? So here we will mark this entry in the Venn diagram as I am marking here. So you can see a Venn diagram denoting the universal set, and then here the two sets I am taking. One is denoting C and other is denoting A. Now let us see. First of all we will have to mark the most common part, and the most common part is the X. American like both cheese and apple. That means this X we have to write as the common portion, and then percentage. The survey shows that 63% of the American likes cheese. So 63% should be the complete part. Out of 63 we have already taken X here. So this will be 63 minus X. Clear? And then 76% like apple, so we'll be writing here 76 minus X. Why I write, sir? Because the complete part should be 76. So X is already written, so therefore on the remaining part it should be 76 minus X. So from this Venn diagram, what I can say that the sum of all these elements should be less than 100, because it is given in the percentage. So all the number of A union C cannot exceed 100. So since number of A union C should be less than or equal to 100, इसका मतलब क्या हो जाएगा? अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा? ये 63 minus x plus 76 minus x should be less than equal to 100. इसमें से प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो गया, तो अपने पास क्या बचेगा? 60 इसको ऐड कर देते हैं, 3 एंड 6 कितना हो जाएगा? 9, और से ये हो जाएगा 12 13 139 माइनस एक्स शुड बी लेस देन इक्वल टू 100, और एक्स को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? 139 माइनस 100 शुड बी लेस देन इक्वल टू एक्स, और एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 39. ठीक है, ये 39 है, 39 इज लेस देन इक्वल टू एक्स, या एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 39. एक तो ये आ गया. अब 39. now from the figure we can see that this part 63 minus x, ये और 76 minus x, ये दोनों नेगेटिव तो हो नहीं सकते हैं. तो we can say that 63 minus x should be greater than equal to 0, and 76 minus x should also be greater than. तो ये दोनों पार्ट पॉजिटिव होना चाहिए, क्यों? बिकॉज द नंबर ऑफ people cannot be negative here in this. So when we simplify it, so we'll be getting what? कि 63 is greater than equal to x and 76 should be greater than equal to x. तो इसका मतलब x should be less than equal to 63 and x should be less than equal to 76. तो which clearly implied that कि 63 से भी कम होना चाहिए, 76 से भी कम होना चाहिए. इसका मतलब x should be less than equal to 63. तो ये अपने पास हो गया इक्वेशन नंबर 2. तो ये 1 था, 1 और ये था 2. तो 1 and 2 implies 1 and 2 implies that
कि 39 शुड बी लेस देन इक्वल टू x शुड बी लेस देन इक्वल टू 63. तो दिस विल बी द रिक्वायर्ड रेंज of the x. Now let us take one question. It is, out of 280 students in a class 12th of school, 135 plays hockey, 110 play football, 80 play volleyball, 35 of these play hockey and football, 30 play volleyball and hockey, 20 play football and volleyball. Also, each student plays at least one of the three games. Then how many students play all the three games? So this is asked. Okay. देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले we will analyze the given situations. So here the total number of students are 280. ठीक है, the total number of students are 280, so that is the number of universal set. Then number of students playing hockey is 1, H stand for hockey, so this is 135. Then for football it is 110. Then volleyball 80. Then hockey and football 35. Volleyball and hockey 30. Football and volleyball 20. So like this, first of all we will analyze the given data. Also each student plays at least one of the three games. That means कोई ना कोई गेम तो हर एक कोई खेल ही रहा है. इसका मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट नॉट प्लेइंग हॉकी और फुटबॉल एंड वॉलीबॉल ऐसे वाली कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो तीनों में से कोई भी गेम नहीं खेल रहा है. तो इसका मतलब ये हो गया कि जो तीनों ही नहीं खेलने वाले हैं वो जीरो है. तो अब इस डेटा की एंट्री करनी है. एंड नाउ वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड व्हाट कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले हॉकी एज वेल एज फुटबॉल एंड वॉलीबॉल. तीनों ही खेलने वाले स्टूडेंट कितने हैं वो पता करना है. तो अब इस इन्फॉर्मेशन को जब हम वेन डायग्राम में एंट्री करेंगे तो वेन डायग्राम में आई टोल्ड यू डैट कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक द एंट्री ऑफ द मोस्ट कॉमन पार्ट. तो मोस्ट कॉमन पार्ट इज दिस वन. डेट मीन्स ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट जो तीनों खेलते हैं. पर यही तो पूछा है. जब ये पूछा है तो अपन इसको मान लेते हैं लेट दिस बी एक्स. क्योंकि हमको पता नहीं है तो ऐसा नहीं कि इसको छोड़ देंगे या जीरो मान लेंगे. इसमें आपको ये जो पता करना है इसको अपन एक्स माना और सबसे पहले इसकी एंट्री करनी है. अब इसके बाद दो की एंट्री. तो ये आप पहले आप देखते हैं हॉकी एंड फुटबॉल में कितने स्टूडेंट थे. तो हॉकी एंड फुटबॉल में आप देखोगे तो 35 थे. तो 35 में से एक्स ऑलरेडी आ गया. तो ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 35 माइनस एक्स. ठीक है. इसके बाद हम आते हैं दूसरे वाले में. सपोज फुटबॉल एंड वॉलीबॉल. तो फुटबॉल एंड वॉलीबॉल का देखते हैं कितना है. फुटबॉल वॉलीबॉल में 20 थे. 20 में से एक्स ऑलरेडी आ चुका है तो ये हो जाएगा 20 माइनस एक्स. इस तरह एंट्री करनी है. इसी तरह तीसरा हॉकी एंड वॉलीबॉल. हॉकी एंड वॉलीबॉल में कितने थे, 30 थे. तो ये कितना हो जाएगा 30 माइनस एक्स. ये एंट्री हो गई. इसके बाद हम इंडिविजुअल में आ जाता है कि हॉकी में कितने थे. हॉकी में थे आपके पास 135. 135 में से कितने हम लिख चुके हैं पहले देख लेंगे. जब हम इसको ऐड करेंगे ये एक्स एक्स कैंसिल हो 30 और ये 65 हो गया. 65 माइनस एक्स. तो 65 माइनस एक्स इसमें से माइनस कर देंगे. तो ये तो इसमें आप अगर आप ओरली नहीं कर पाए तो रफ वर्क में आप यहाँ लिख ले कि 135 में से 65 माइनस एक्स आपको माइनस करना है. तो कितना आ जाएगा 135 माइनस 65 मेक्स व्हाट, कितना हो जाएगा 5 में 5 गया 0 और ये इतना हो गया 770 माइनस और माइनस प्लस एक्स हो गया. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 70 प्लस एक्स ये हो जाएंगे. इसी तरह फुटबॉल वाले में कितना है, फुटबॉल वाले में 110 है. तो 110 में से किसको माइनस करेंगे, 110 में से इनको माइनस कर लेते. तो ये एक्स एक्स कैंसिल हो 35 और 35 ये हो गया 55. तो ये 55 माइनस एक्स. तो कितना हो जाएगा 110 माइनस 55 कितना हो जाएगा 55 माइनस और माइनस प्लस एक्स हो जाएगा. तो ये हो जाएगा 55 प्लस एक्स. इस तरह एंट्री करनी है. सिमिलरली ये जो वॉलीबॉल के हैं तो उसमें वॉलीबॉल वाले कितने थे 80 थे. तो 80 माइनस ये कैंसिल होगा 30. तो ये 50 माइनस एक्स. क्या किया मैंने इन तीनों को जोड़ करके टोटल 80 में से माइनस कर लिया. तो अपने पास कितना आ जाएगा 30 प्लस एक्स आ जाएगा क्योंकि ये माइनस है. तो ये हो जाएगा 30 प्लस एक्स. फिर लास्ट में इसकी एंट्री करेंगे ऑल्सो द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्लेस एटलीस्ट, यानी सब के सब
टोटल कितने थे 280, यानी ये सब मिलाकर के 280 होना चाहिए, क्योंकि कोई भी कुछ भी नहीं खेलने वाले हैं, कितने हैं 0 है, यहाँ पे हमने लिख रखे हैं। तो सारी एंट्री होने के बाद अब हमें x की वैल्यू पता करनी है। तो x की वैल्यू कैसे पता करेंगे, हमको पता है कि ये सबको जोड़ने पर ये टोटल नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट आ जाना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू वेन डायग्राम, ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ यूनिवर्सल जो सेट जो होगा वो कितना हो जाएगा, ये सबको मिला करके हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 70, ये वाला पोर्शन जो अगर आप ऐड करोगे ना, तो ये सब पूरा मिला करके नंबर ऑफ कितने हो जाएंगे, हॉकी वाले आ जाएंगे। तो हॉकी वाले आप लोग को टोटल दे रखा है 135। तो हम क्या करेंगे इसको 70 प्लस एक्स प्लस 35 माइनस एक्स, ये फिर प्लस एक्स प्लस 30 माइनस एक्स, ये पूरा इसको जोड़ लिया। ये पूरा का पूरा मिला करके कितना है 135 है। और ये हम फिर आगे ऐड करेंगे तो 55 प्लस एक्स, फिर प्लस 20 माइनस एक्स प्लस 30 प्लस एक्स, 20 माइनस एक्स प्लस 30 प्लस, और ये प्लस 0, आगे वाला पार्ट 0, ये हो गया। अब ये नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट कितने हैं 280, ये सब मिला करके आप लोगों को पहले से दे रखा है कि टोटल नंबर ऑफ हॉकी स्टूडेंट 135 है, तो आपने लिख दिया 135 पहले से लिख दिया। फिर हम इसको आगे वाले को सोल्व कर लेते हैं। तो इसमें देख लीजिए 55 प्लस एक्स और माइनस एक्स को हमने काट दिया। 55 या 20 प्लस 30 कितना हो गया 50, 50 प्लस 55 कितना हो गया 105 प्लस एक्स ही हो गया। जब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, तो एक्स की ये 280, इसको अपन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 240 प्लस एक्स हो जाएगा। और फिर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 280 माइनस 240 विच इज इक्वल टू 40। तो इस तरह हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगा। तो देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्लेज हॉकी एज वेल एज फुटबॉल एज वेल एज वॉलीबॉल, तो कितने हो जाएंगे 40 स्टूडेंट। तो दिस वे विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर। अब दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कम्स इन 4 to 6 मार्क्स कैटेगरी। वैसे 3 वाला जो रहता है मोस्टली 6 मार्क्स कैटेगरी में भी आ जाता है। तो ये आपको इस तरह करना है। तो वेन डायग्राम में एंट्री करने के बाद वी कैन आंसर एज मैनी क्वेश्चन एज वी वांट। अगर मुझे एग्जैक्टली 2 कितने वाले हैं तो एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करने के बाद ये पोर्शन ऐड कर सकते हैं। एग्जैक्टली 1 हॉकी खेलने वाले कितने हैं तो हमने एक्स की वैल्यू पता कर ली 40, तो 70 प्लस 40 करेंगे तो कितना हो जाएगा 110, तो 110 प्लेस ओनली हॉकी। तो लाइक दैट मैनी अदर क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी आंसर्ड। Okay, now we will take one more question, and you can see that the question is displayed on your screen. So first of all we will read this question. The question is, of 25 students, it was found that 15 has taken mathematics, 12 has taken physics, and 11 has taken chemistry. 5 had taken mathematics and chemistry, 9 had taken mathematics and physics, 4 had taken physics and chemistry, and 3 had taken all the 3 subjects. Find the number of students that has taken first part only chemistry, only mathematics, and like that you can see that 8 part are asked here. Now how to find these answers? We will first make the Venn diagram and mark all the entries of the given question, and then after analyzing the Venn diagram we will be able to answer these questions. Okay, now let us analyze the given situation. Here the total number of candidates are 25. So we have taken number of universal set as 25. Then number of student opting for mathematics, M stand for mathematics, are 15. Then for physics it is 12. Then for chemistry it is 11. Number of student for maths and heavy maths and chemistry both are 5. Maths and physics both are 9, and physics and chemistry both, the number of candidates are 4, and the number of candidates having all the 3 subjects math, physics and chemistry, they are 3, right? And then we are required to find the 8 part as it is given. So let us now first of all make the entries of these data in the Venn diagram. So Venn diagram entry has to start from the most common part, and the most common part is the common in all the 3. मैथ्स भी हो, फिजिक्स भी हो, केमिस्ट्री में, तो ऐसे कितने कैंडिडेट है 3 है, तो यहाँ पर हमने 3 लिख दिया। तो इसके बाद 2 के कॉमन पार्ट, तो मैथ्स एंड फिजिक्स, तो मैथ्स एंड फिजिक्स वाला देखो, मैथ्स एंड फिजिक्स में टोटल 9 है, 9 में से 3 ऑलरेडी रिटर्न, तो 9 माइनस 3 कितने हो जाएंगे 6 यहाँ पे आ जाएंगे, ताकि टोटल मैथ्स और फिजिक्स का कॉम्बिनेशन मिला के 6 + 3 9 बन जाएगा।
क्लियर है। इसी तरह अब हम सपोज डिसाइड करते हैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वाले टोटल कितने हैं। तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में टोटल 4 है, तो 3 पहले लिख चुके हैं, तो यहाँ पे खाली 1 बचेगा। सिमिलरली मैथ्स एंड केमिस्ट्री वाले कितने हैं, मैथ्स एंड केमिस्ट्री कहाँ गया, मैथ्स एंड केमिस्ट्री 5 है, 5 में से हमने 3 लिख दिया है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये एंट्री होगी। आप खाली इंडिविजुअल सेट की एंट्री करेंगे हम। तो मैथ्स ये टोटल मैथ्स के कैंडिडेट कितने थे, 15 थे। 15 में से कितने लिख चुके हैं, 6 + 3 9, 9 + 2 11। तो 15 - 11 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर है। इसी तरह हम फिजिक्स की एंट्री करेंगे। फिजिक्स में टोटल 12 थे, तो 6 कितने हो गए, 6 तो 3 9 + 1 10। तो 10 माइनस कर देंगे 12 में से, तो ये हो जाएगा 2। और केमिस्ट्री में 11 होने चाहिए, तो ये 6 ऑलरेडी हो गया। तो 11 - 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इससे सारी एंट्री हो गई। अब हम ये देखते हैं बाहर एंट्री कितनी है, सबको टोटल करके देखते हैं कि सबकी टोटलिंग कितनी हो रही है। तो सबकी टोटल करोगे तो मैथ्स के ये टोटल मैथ्स का है, तो मैथ्स का 15 थे, बाकी तीनों ऐड कर लो। तो 15 + 5 20, 21 और 23। तो 23 कैंडिडेट हो गए। इसका मतलब 2 और बच रहे हैं। तो जो 2 बच रहे हैं वो ये बाहर आ जाएंगे, यानी ये 2 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके पास इन तीनों में से कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम एक एक सॉल्व करेंगे वेन डायग्राम से। नाउ आफ्टर रीडिंग वेन डायग्राम, तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन था कि नंबर ऑफ स्टूडेंट हैविंग ओनली केमिस्ट्री, या आई हैव टेकन ओनली केमिस्ट्री, ओनली केमिस्ट्री, सी स्टैंड फॉर केमिस्ट्री, ओनली सी कितने हैं। तो ओनली केमिस्ट्री वाला पोर्शन में देखो केमिस्ट्री का पोर्शन ये है, पर ओनली केमिस्ट्री मतलब कोई भी पोर्शन ना मैथ्स का ना फिजिक्स का कॉमन नहीं हो, तो वो कितना है, 5 है। तो ये हम यहाँ लिखेंगे ओनली केमिस्ट्री स्टूडेंट्स आर 5 ओनली। ठीक है। इसी तरह हम सेकंड जो क्वेश्चन आंसर करेंगे, सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या था, ओनली मैथ्स। सेकंड वाला जो था नंबर ऑप्शन ओनली एम मतलब मैथ्स। तो ओनली मैथ्स वाले कितने थे, यहाँ पे देखो 4 है खाली, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 4। क्लियर है। तो इवेंट डायग्राम को देखकर ही आपको हरी बताया। तो इसी तरह तीसरा जो पार्ट है इसके अंदर ओनली फिजिक्स, ओनली फिजिक्स। तो ओनली फिजिक्स वाले कितने हैं, 2 हैं। फिर चौथा जो है वो है नंबर ऑफ स्टूडेंट हैविंग फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, यानी फिजिक्स तो हो केमिस्ट्री भी हो बट नॉट मैथमेटिक्स, पर मैथमेटिक्स नहीं है, मैथ्स नहीं है। तो आप देख लो पहले फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वाला पोर्शन देखेंगे। तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वाला पोर्शन कौन सा, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वाला पोर्शन ये। तो ये वाला पोर्शन है 3 + 1 यानी टोटल 4 हो रहे हैं। लेकिन इसके अंदर से हमें मैथ्स नहीं चाहिए, तो 3 वाला हटा देंगे, तो बचेगा कितना, खाली 1 बचेगा। तो ये वाला एलिमेंट 1 बन जाएगा। इसी तरह फिफ्थ वाला जो पार्ट है वो क्या पूछा है, नंबर ऑफ मैथ्स एंड फिजिक्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट हैविंग मैथ्स एंड फिजिक्स एम इंटरसेक्शन पी बट नॉट केमिस्ट्री। तो पहले मैथ्स एंड फिजिक्स वाला देख लेते। तो मैथ्स एंड फिजिक्स वाला टोटल 6 + 3 है ये, बस में हमें केमिस्ट्री वाला पोर्शन नहीं चाहिए, यानी ये 3 वाला पोर्शन नहीं चाहिए। तो कितने बचेंगे, खाली 6 बचेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 6। इसी तरह सिक्स्थ वाला का आंसर क्या हो जाएगा, ये भी देख लेते हैं। सिक्स्थ वाले का आंसर क्या हो जाएगा, सिक्स्थ वाले में पूछा क्या गया है, ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट, ओनली वन, या इसको अपन यहाँ से लेकर के यहाँ लिखते हैं, नंबर ऑफ, सिक्स्थ वाला पार्ट हम यहाँ करते हैं, ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट। तो ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट में क्या आ जाएगा, ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट मतलब सिर्फ एक ही सब्जेक्ट हो, तो ये क्या हो जाएगा, ये 4 वाला खाली मैथमेटिक्स वाला पार्ट, खाली फिजिक्स वाला पार्ट और खाली केमिस्ट्री वाला पार्ट। तो कितने हो जाएंगे, ये 11 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा। इसी तरह सेवेंथ वाला जो पार्ट है वो क्या है, सेवेंथ पार्ट में हमें पूछा गया एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट, एटलीस्ट वन ऑफ 3 सब्जेक्ट, यानी कम से कम एक हो। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें पूछा गया है नंबर ऑफ एम यूनियन पी यूनियन सी, ये हो गया एटलीस्ट वन ऑफ देम। तो इसका मतलब इस वेन डायग्राम में से ये पूरा पोर्शन लेंगे, तो इस पूरा पोर्शन में से खाली ये 2 नहीं चाहिए, तो टोटल 25 में से था, तो 25 में से 2 हटा देंगे, तो ये 25 - 2 लिखेंगे यहाँ पे। तो 25 - 2 कितने हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे। तो ये अपना आंसर 23 हो जाएगा। और लास्ट में हमें 8वां जो क्वेश्चन पूछा है
नन ऑफ द सब्जेक्ट, ना तो मैथ्स, ना फिजिक्स और ना ही केमिस्ट्री। तो ये वाला पोर्शन के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, इनको छोड़ करके तो ये वाला पोर्शन आएगा, खाली 2 वाला पोर्शन आ जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू 2। तो दिस इज हाउ वी कैन आंसर ऑल द क्वेश्चंस आफ्टर रीडिंग द वेन डायग्राम। तो आई होप आप लोगों को ये सारे आपको वेन डायग्राम से क्वेश्चन करने आ जाएंगे। एंट्री करने के लिए थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस, पहले एनालाइज कर लिया करो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, और फिर एंट्री कर लो वेन डायग्राम में, एंड आफ्टर रीडिंग द वेन डायग्राम यू कैन आंसर ऑल द क्वेश्चन दैट आर आस्क्ड। तो practice all the questions of your exercise related with this topic, because one question definitely will be asked in the examination depending on the situation। छोटा क्वेश्चन होगा तो 4 नंबर में, अदरवाइज बड़ा क्वेश्चन तो 6 नंबर में आता है। जैसे ये वाला जो क्वेश्चन क्या है 6 मार्क्स कैटेगरी का क्वेश्चन है। ओके, थैंक यू।